عظمت بہت ہے. ماں سے تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ اگر آپ کے ماں باپ زندہ ہیں تو آج ان کی قدر کر لیجئے. اپنے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں نہ بھیجیے گا. چلے آپ مسلمان ہیں, اولڈ ہاؤس میں نہیں بھیج سکتے, کہیں آپ نے اپنے گھر کا ایک کمرہ تو اولڈ ہاؤس نہیں بنا رکھا کہ ماں کا کمرہ باپ کا کمرہ علیحدہ دے دیا اور دن گزر جاتے ہیں, راتیں گزر جاتی ہیں, ہفتہ گزر جاتا ہے, ماں باپ سے جا کر سلام بھی نہیں کرتا. تو یہ اولڈ ہاؤس ہی تو ہے. ماں باپ نے دیواروں کو کیا کرنا ہے؟ گھر سے نکلتے ہوئے ماں باپ سے دعا لے کر نکلا کریں, اگرچہ 80 سال عمر کیوں نہ ہو گئی ہو. تم اگر ڈی سی او بھی بن گئے ہو, منسٹر بھی بن گئے ہو, ماں کی قدموں کی خاک نہیں بن سکتے. اولڈ ہاؤس کا اگر فیشن نہیں ہے پاکستان میں, تو میں نے دیکھا ہے لوگوں نے اپنے گھروں کو ماں باپ کے لیے اولڈ ہاؤس بنا رکھا ہے, ایک کمرے کو اولڈ ہاؤس بنا رکھا ہے. گھر آیا کرو تو سب سے پہلے ماں باپ کے پاس جایا کرو, ان کی خدمت میں بیٹھا کرو. تمہارے پاس وقت نہیں تو ان کے لیے نکالا کرو, بہت ضروری ہے, کیونکہ کل تمہارے بچے بھی تو بڑے ہوں گے. مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے, ایک کہاوت ہے, کیسے ماں پالتی ہے بچے کو, 9 مہینے پیٹ میں رکھتی ہے, کمر کے مہرے ہلے ہوئے ہیں. ہمارے پاس ایسے بھی مریض آتے ہیں کہ کمر کے مہرے جو ہیں ان کی ڈسک پرولیپس ہو چکی ہے, لیکن ڈاکٹر صاحب میں بچہ چاہتی ہوں. بی بی تیرے مہرے وزن نہیں اٹھا سکیں گے. تو ہم نے ماؤں کو کہتے سنا ہے کہ ڈاکٹر صاحب بیٹا ہو جائے میں لگڑی لولی بھی زندگی گزار لوں گی. 9 مہینے کا وزن اٹھاتی ہے, اس کال کوچھڑی میں بھی تمہیں پالتی ہے. اگر میں تمہیں کہوں کہ 9 مہینے اپنی ماں کو کندھوں پر اٹھا کر بیٹھے رہو, بیٹھ جاؤ گے؟ نہیں بیٹھ سکتے. 9 مہینے بڑی دور کی بات, صرف 9 منٹ اپنی والدہ کو روزانہ دے دیا کرے. میرا یہ آپ سے یہ التجا ہے, ریکویسٹ ہے. پھر دیکھیں آپ کے گھر میں برکت کتنی ہوتی ہے. ساری زندگی پالا, بڑا ہو گیا, افسر بن گیا, شادی ہو گئی, ماں کو کھانسی ہوتی ہے, ماں بیمار ہو گئی. یہ کہہ کر کہ میری بیوی بچے ڈسٹرب ہوتے ہیں, ماں کو اولڈ ہاؤس میں بھیج دیتا ہوں. ماں کو اولڈ ہاؤس میں بھیج دیا کہ میری نیند ڈسٹرب ہوتی ہے, میرے بچوں کے امتحان ہے, میری بیوی پروفیسر ہے فلاں کالج میں, اس نے صبح لیکچر پڑھانا ہے, رات کو سو نہیں سکتی, تو ماں کو اٹھا کے اولڈ ہاؤس میں چھوڑا ہے. اس بیچاری نے کیا کہنا تھا, پڑی رہی وہاں پر. جب موت کے قریب تھی تو اس نے اولڈ ہاؤس کے وارڈن کو بلایا. اس نے کہا وارڈن صاحب میرے بیٹے کو تو بلا دیں, میں اس سے آخری ملاقات کرنا چاہتی ہوں. جب بیٹا آیا تو اس نے کہا ماں خیریت سے بلایا ہے؟ اس نے کہا ہاں بیٹا مجھے لگتا ہے میرے سانس تھوڑے ہیں, کم ہے. ایک تم سے ریکویسٹ ہے, یہ جس کمرے میں میں رہ رہی ہوں گرمی زیادہ ہے, پنکھا نہیں لگا, میں مر جاؤں تو اس میں ایک پنکھا ضرور لگا دینا. اس نے کہا ماں تم مر جاؤ گی تو مجھے پنکھا لگانے کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس نے کہا بیٹا میں تمہیں دکھ میں نہیں دیکھنا چاہتی, مجھے نظر آ رہا ہے کہ تم نے بھی یہاں آنا ہے. میں نے تو گرمی میں گزار لیا, لیکن میں چاہتی ہوں تم پنکھا لگا کر اس کمرے میں رہو. اللہ ماں کی عظمت بیان کروں تو مجھ میں ہمت نہیں ہے. ایک کہانی میں پڑھ رہا تھا, ایک جوان لڑکا تھا, عیاش تھا, کسی سے محبت ہو گئی. اس نے کہا میں تمہاری محبت اس وقت
समझूंगी जब तुम मुझे अपनी माँ का दिल लाकर दिखाओगे। उस कहानी में लिखा था, बदमाश था, नाफरमान था, माँ की कदरों कीमत जानता नहीं था, माँ को कत्ल किया, दिल निकाला, हाथ पर रख के लेकर जा रहा था, ठोकर लगी, दिल नीचे गिर गया, दिल में से आवाज आई, बेटा तुझे चोट तो नहीं लगी? माँ का दिल ऐसा होता है, कहीं हम माँ के नाफरमान तो नहीं। अपनी माँ की खिदमत कीजिए, उस शख्स की खिदमत कीजिए जो सुबह निकलता है, रात तक ईंटें और तिगारियां उठाता है और तुम्हारे लिए रिस्क का एहतमाम करता है, घर रोटी लेकर आता है, जिसको बाप कहते हैं। कभी उसको गर्मियों के अंदर तपती रूत में, तपती धूप में ईंटें उठाते हुए देखो तो तुम्हें पता चले कि बाप की अजमत क्या है, ये रोजी रोटी कमाने के लिए कितनी मेहनत करता है। अपने फटे हुए कपड़े हैं लेकिन बच्चों को ईद पर भी नए कपड़े सिलवा कर देता है। अजीज़ा ने ग्रामी, अगर माँ बाप तुम्हारे पास हैं तो ज़रूर उनकी खिदमत कीजिए। आप 70-80 साल के भी हो गए हैं, आपकी वालिदा वालिद 90 साल के हैं, तो आप अभी उनके बच्चे ही हैं। आप खुद नाने बन गए हैं, दादे बन गए हैं, लेकिन अब माँ बाप के बच्चे ही हैं। मैंने मदरसे में अपने बच्चे महीने के बाद छुट्टी पर जाते हैं तो मैं एक नोटिस निकालता हूँ कि हर बच्चे की ये ड्यूटी है कि वो 4 दिन घर में छुट्टी पर जाएगा तो ज़रूर अपनी वालिदा और वालिद के पैर चूम कर आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो चूम कर नहीं आता मैं उससे नाराज़ हो जाता हूँ। क्यों? इससे आजिज़ी पैदा होगी। जो औलाद माँ बाप के पैर चूम सकती है वो नाफरमान नहीं हो सकती। मेरा अपना कॉन्सेप्ट है, जो माँ बाप की कदम चूम लेता है वो बेअदब नहीं हो सकता। मेरी ये रूटीन है, बच्चे जब भी छुट्टी पे जाते हैं मैं उनको ये तलकीन करता हूँ। हदीस शरीफ में आता है, उफ, कुरान मजीद में आता है ना कि माँ बाप के सामने उफ तक ना कहो। इसकी तशरीह में पढ़ रहा था, एक मुफस्सिर ने लिखा कि इसकी तशरीह है उफ कहते किसे हैं। फरमाया कभी आंधी चले और मट्टी तुम्हारे हाथों पर और जिस्म पर गिरे, जो मट्टी को उड़ाने के लिए फूंक मारते हो करके, आप फरमाते हैं कि इसको उफ कहते हैं। तुम माँ बाप के साथ ऐसे खड़े हो कि तुम्हारी इतनी भी आवाज़ ना निकले, जिसको उफ कहते हैं। ये बड़ा लुत्फ आया पढ़ने में। फरमाया माँ बाप के सामने तुम ऐसे खड़े हो जैसे एक गुलाम भाग जाए और फिर पकड़ा जाए और दोबारा मालिक के सामने पेश किया जाए। उसकी हालत क्या होती है? टांगे कांप रही होती हैं कि मेरा मालिक मेरा क्या हाल करेगा। आंखों में आंसू होते हैं, दिल की धड़कनें तेज होती हैं। भागा हुआ गुलाम जब पकड़ा जाए और पेश किया जाए, जैसे उसकी हालत होती है। फरमाया अपने माँ बाप के सामने ऐसे खड़े हुआ करो, बजाय ये कि माँ बाप के सामने गिरेबान खोलकर सूटे मारता है और सिगरेट का धुआं माँ बाप की तरफ फेंकता है। अजीज़ा ने ग्रामी, अल्लाह सब पर रहमत नाजिल फरमाए। वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं। ज़िया की वालिदा दुनिया से रुखसत हुई, सबकी माँओं ने जाना है, माँ बाप चले गए। ज़रूर बिल ज़रूर उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करता रहे, रोज़ाना कुछ ना कुछ दरूद शरीफ पढ़कर उनको भेजता रहे। इंशाअल्लाह माँ बाप कब्र में भी इससे खुश हो जाएंगे, क्योंकि मरने के बाद नेक औलाद भी सदका जारिया है। हदीस शरीफ के अल्फाज हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 चीज़ मरने के बाद काम आती हैं, अमाल साले, नेक अमल, औलाद साले, नेक औलाद, सदका जारिया तीसरी चीज़ है। तो अगर ये औलाद साले है तो काम कैसे आएगी मरने के बाद? उस वक्त जब ये नेक काम करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, इबादत करेंगे, दुआ करेंगे, जिक्र करेंगे और फिर अपने वालिदैन की मग़फ़िरत की दुआ करेंगे, वो कब्र में भी सुकून पाएंगे। आखिरी बात करके आपसे इजाज़त चाहता हूँ। एक सहाबी रसूल हाजिर हुए बारगाह रिसालत में, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
जन्नत की चौखट को बोसा देना चाहता हूँ और जन्नत के दरवाजे को चूमना चाहता हूँ। मेरे नबी ने फरमाया ठीक है, घर जाओ, माँ के कदम चूमो, बाप की पेशानी चूमो। समझो तुमने जन्नत की चौखट और जन्नत के दरवाजे को चूम लिया है। अर्ज किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माँ बाप फौत हो चुके हैं। फरमाया उनकी कब्र पर जाओ, जहां माँ के कदम है उसको चूम लो, जहां बाप का सर है उसको चूम लो। समझो तुमने जन्नत की चौखट, जन्नत के दरवाजे को चूम लिया है। ज़रूर अपने माँ बाप को दुआओं में याद रखा करें। शेख सईद की फुप्पी जान भी आज फौत हुई, उनके लिए भी दुआएं मग़फ़िरत करें। और जितना वक्त आपके पास है ज़रूर माँ बाप की ज़ियारत किया करें। घर से निकलते हुए और घर में दाखिल होते हुए आपका पहला अमल यही होना चाहिए, ऊंची आवाज़ से अस्सलामु अलैकुम कहें, कोई घर में हो या ना हो, और सीधे माँ बाप के कमरे में जाइए। माँ बाप के कमरे को ओल्ड हाउस ना बनाइए, क्योंकि एक दिन आपने भी बूढ़ा होना है। अल्लाह सबका हामी नासिर हो, सब पर रहमत फरमाए और हमें हक बात की तलकीन करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अब आप नमाज मगरिब की तैयारी कर लें, इंशाअल्लाह उसके बाद हम ख़त्म शरीफ कुछ कुरान की तिलावत करेंगे। अल्लाह सबका हामी नासिर हो। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।